بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ صبح صبح امی کا یہ انکشاف سن کر کہ نبیلہ کی آنکھیں چلی گئی ہیں، وہ کبھی دیکھ نہیں پائے گی، مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو بچپن سے بینا ہے اچانک نابینا کیسے ہو گیا۔ ویسے بھی نبیلہ میری منگیتر تھی، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی تھی۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، بلکہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ کیسے کیسے خواب سجائے تھے ہم نے، سارے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ ان حالات میں کیا کر سکتا تھا؟ نبیلہ جو حسن کا پیکر تھی، اسے زندگی کا ساتھی بنا کر میں خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا۔ میری چاہت، میری الفت، مجھے یقین نہیں تھا کہ ہم دوبارہ مل پائیں گے۔ ہم نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر ان حالات میں اسے چھوڑنا محبت کی توہین تھی۔ ابھی تو وقت آیا تھا، اور پھر یہی تو کسی کی محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ نبیلہ کی آنکھیں خوبصورتی کا شاہکار تھیں، ان آنکھوں میں تو گہرے رنگ بھرے تھے جس کی وجہ سے دیکھنے والا ڈوب جایا کرتا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید نبیلہ کو نظر لگ گئی ہے۔ نظر کا لگ جانا اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں کہ کسی کی بینائی ختم ہو جائے۔ واقعی اس کی آنکھوں میں پراسراریت تھی، عجیب تپش تھی۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، ہلکا نیلا اور سبز رنگ اس کی آنکھوں میں نمایاں رہتا۔ اتنا تو ہم جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات بھی ہوئے تھے۔ اس دن میں اس کے گھر کھانے کی ٹیبل پر کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ قریب ہی ٹیبل پر پانی سے بھرا شیشے کا گلاس رکھا تھا، پاس ہی نبیلہ بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی کھانے کے دوران کنکھیوں سے اسے دیکھ لیتا۔ جب میں اسے دیکھتا، اس کی نظر میری طرف ہونے کی بجائے پانی سے بھرے گلاس کی طرف ٹکی ہوتی۔ میں نے کئی بار اسے دیکھا، مگر اسے پانی کے گلاس پر نظریں جمائے پایا، جیسے وہ پانی میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں نے یہی سمجھا اور کھانے میں مصروف رہا، مگر اس وقت ہی میں اچھل پڑا جب گلاس کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سارا پانی ٹیبل پر بہہ گیا۔ اچانک پانی کا قطرہ میرے بدن سے ٹکرایا تو مجھے لگا کہ وہ قدرے گرم ہے۔ میری نظر نبیلہ پر پڑی، ابھی تک وہ ٹوٹے ہوئے گلاس کو گھور رہی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اچانک چونک سی گئی، اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور پھر بولی، کیا گلاس ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا؟ اسے تو علم بھی نہیں تھا کہ گلاس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ اس واقعے سے مجھے ایک چیز کا اندازہ تو ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں پراسراریت ہے، کیونکہ جب بھی شیشے کی کوئی چیز سامنے آتی تو وہ ایسے دیکھتی جیسے کہ اس کا دشمن کھڑا ہو۔ شیشے کے ٹکڑے ہو جاتے، ایسا کئی بار ہوا۔ وہ جس آئینے میں اپنے آپ کو سنوارتی، وہ آئینہ بھی اس کے حسن کی تاب نہ لا کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گھر میں سبھی آئینے اس کی آنکھوں کا شکار بن جاتے۔ اس گھر میں آئینہ تو اب رہا بھی نہیں تھا۔ کوئی کچھ نہیں جانتا تھا کہ آئینوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر سب نے اپنے لیے چھوٹے آئینے رکھے ہوئے تھے۔ کانچ کے سارے برتن اور آئینے اسی طرح ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہ راز اس وقت فاش ہوا جب نبیلہ نے اپنی چھوٹی بہن سے آئینہ مانگا۔ نبیلہ نے بلا جھجک دے دیا۔ نبیلہ اپنا آپ آئینے میں دیکھنے لگی۔ نادیہ اس انتظار میں تھی کہ کب آئینہ فارغ ہو اور وہ بھی اپنی جانچ پڑتال کرے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ جب نبیلہ نے فرش پر نظر ڈالی تو آئینہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ نادیہ چونک سی گئی، ادھر نبیلہ چونک سی گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ وہ خود بھی بے خبر تھی کہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے۔ اچانک نبیلہ کی نظر ایک ٹکڑے پر پڑی جس کی پشت پر کچھ لکھا ہوا تھا، مگر وہ آدھا تھا۔ پھر اسے ایسے کئی ٹکڑے نظر آئے جن کی پشت پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر آئینے کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا۔ تب ایک لفظ سامنے ہوا، آنکھیں۔ نادیہ کے سامنے ایک بات تو کھل گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ اس نے یہ بات سب سے چھپائی
और किसी दूसरे आईने के टूटने का इंतजार करने लगी। और फिर जब दूसरे आईने के टुकड़े को जोड़ा गया तो उनके पीछे भी आंखें लिखा हुआ था। उस दिन भी मैं इधर था। गिलास वाला वाकया 1-2 दिन पहले का था। नादिया ने वो सारी बात मुझे बता दी थी। ये बात समझने में किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी। फिर हमने ये बातें सबसे छुपाई थीं। इस तरह आईने का टूटना और उसकी पुश्त पर आंखें लिखा होना, जिससे पुरस्कारियत जाहिर होती थी, मगर वो है क्या ये हम नहीं जानते थे। फिर हम इसी पुरस्कारियत में लग गए कि इसका राज कैसे फाश करें। अपने अपने तौर पर हम दोनों ही सरगर्दा थे। नबीला को इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं जब भी नबीला से कहता कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो वो मुस्कुरा कर बात टाल देती। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हम कोई सुराग लगाने में नाकाम रहे, मगर उसकी आंखों की पुरस्कारियत का भूत अभी भी मेरे सर पर सवार था, जो किसी भी तौर पर जान लेने के बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी अजीब चौराहे पर खड़ी थी, एक ऐसा मोड़ जो पल पल मेरी बेचैनी में इजाफे का बाइस बन रहा था। जब मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आती तो मैं किताबों से दोस्ती कर लेता हूँ। अभी भी किताबों की वर्क गिरदानी करने लगा तो मुझे मेरा मकसद मिल गया। जब वर्क गिरदानी के दौरान एक सफ़ा मेरे सामने आया जिस पर लिखा हुआ था जादुई कमालात। आगे कमालात का जिक्र था। मेरे लिए सबसे अहम कमाल ये था कि नज़रों के जरिए गिलास तोड़ना, ये सब मुमकिन था। काफ़ी हद तक बात मेरी समझ में आ गई। क्या नबीला भी मैजिक में दिलचस्पी रखती है? क्या वो सब मैजिक के जरिए कर रही है? कुछ हद तक मैं मुतमईन हो चुका था। दिन तेजी से गुजरने लगे। इस वाक़े को कमोबेश 1 साल बीत गया। आज मुझे ये खबर सुनने को मिली तो मैं दिल बर्दाश्ता होकर खेतों की तरफ निकल पड़ा। यही सब कुछ सोचते हुए शाम हो गई। शाम को भी अलविदा होते सूरज को रुखसत होना चाहता था। शाम के साए छाने लगे। मेरे जहन पर छाया हुआ गुबार भी काफ़ी हद तक साफ हो चुका था। फिर कल नबीला के घर जाने का सोचकर उठ खड़ा हुआ। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी। घर का हर फर्द उदास था। मैं किसी से कुछ बोले बिना बगैर बात किए अपने कमरे में चला गया। रात को खाना भी नहीं खाया। रात गए तक यही कुछ सोचता रहा। फिर न जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। दूसरे दिन मैं अपने मामू के घर मौजूद था। नबीला मेरी मामू साथ थी। सब लोग परेशान थे। मेरी कोई ख़ास आओ भगत नहीं हुई, बस रस्मन सबने खुशामदीद कहा। सभी गम में डूबे हुए थे। मुझे वेलकम कौन करता? थोड़ी देर के बाद मैं नबीला को तलाश करता जामुन के दरख्त के नीचे आ गया। आसपास के माहौल से वो बेखबर थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया, मगर उसे मेरी आमद का पता न चला। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक सी गई और आसपास हाथ मारने लगी। शायद किसी अंधे के वजूद को हाथ मारने लगी। शायद किसी अंधे के वजूद को छूना चाहती थी। राकेश। राकेश का नाम सुनकर मुझे झटका लगा। ये राकेश कहाँ से आ गया? मजीद में राकेश का नाम नहीं सुनना चाहता था, इसलिए फौरन बोल पड़ा, नबीला, मैं शाकिर हूँ। मुझे लगा कि शाकिर का नाम सुनकर नबीला को कोई खुशी नहीं हुई। हालांकि मेरा नाम सुनकर शर्मा जाती थी। आज खामोश बैठी थी। आज मेरा नाम सुनकर उदास हो गई थी। खैर, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं था। मैं नबीला को दिलासा देने आया था, मगर नबीला की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। कहने लगी, शाकिर, ये कुदरत के खेल हैं। मेरी दुनिया के सब रंग बेनूर हो गए, आंखें अंधी हो गईं। मैंने कहा, तुम सब्र से काम लो, अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक कर लूँगा। कहने लगी, नहीं शाकिर, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें पहले भी बता देना चाहती थी, मगर बता नहीं पाई। अब वक्त आ गया है कि सब कुछ बता दूं। एक तुम ही तो हो जो मेरे झूठ को भी सच मान लेते हो। कब तक तुम्हारी राहें तक रही हूँ। तुम आओगे और असल बात बताऊंगी। मैंने कहा, असल बात? तो फिर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगी, हाँ शाकिर, असल कहानी कुछ और है। वो गिलास का टूटना, आईनों का रेजा रेजा होकर बिखरना,
सब मेरी आंखों की वजह से था। मैं ये सब जानती थी, मगर किसी को बताकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। मैं जब पहली बार खेतों में गई थी ना शाकिर, मुझे सरसों के खेत में वो नजर आया। मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आया। वो कमोबेश मेरी ही उम्र का था। उसे रंगों से मोहब्बत थी, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि उसे रंगों से इश्क था। कभी वो नीले आसमान को देखता, कभी किसी खूबसूरत मंजर में खो जाता। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। सरसों के फूलों के दरमियान एक तितली के पीछे वो भागता जा रहा था। ये हमारी पहली मुलाकात थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस वो बहुत खूबसूरत था। उसके बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। शायद वो तितली पकड़ना चाहता था। अपने इर्द गिर्द से बेगाना वो तितली के पीछे भाग रहा था। फिर ऐसा हुआ, उसने तितली को पकड़ लिया, मगर उसने तितली को ऐसे पकड़ा कि वो अभी भी फड़फड़ा रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर वो शर्मिंदा सा हो गया, शायद इसलिए कि तितलियों का पकड़ना बच्चों का काम है। वो मेरे पास आने लगा। एक अजनबी को अपनी तरफ आता देखकर मैं डर सी गई, मगर मुझे उससे खौफ नहीं आ रहा था। मुझे वो मासूम और भोला भाला सा लगा। वो मेरे बहुत करीब आ गया, इतने करीब कि मेरी आंखों में झांक रहा था। फिर ऐसा भी हुआ, वो मेरी आंखों में ऐसा खोया कि खुद भी बेगाना हो गया। पता नहीं वो क्या तलाश कर रहा था। तितली अभी भी उसके हाथों में मौजूद थी। फिर अचानक तितली फड़फड़ाई। उसके फड़फड़ाने से उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। वो मेरी आंखों से निकलकर बाहर आ गया। वो मेरी आंखों में देखकर शर्मिंदा सा हो गया था। कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले उसने वो रंग बिरंगी तितली अपने हाथों के दरमियान कैद कर ली। तितली उसके हाथों के हिसार से निकलने को मचल रही थी। फिर वो तितली को देखने लगा। उसने बारी बारी दोनों आंखों से झांककर तितली को देखा। फिर उसने सर को ऊपर उठाया तो उसकी आंखें बंद थीं। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली उसके हाथों से निकलकर आज़ाद हो गई। मगर लगता था कि वो पहले वाली तितली नहीं थी, बल्कि बेरंग हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, तितली के सारे रंग उसकी आंखों में थे। मैं देर तक उसे देखती रही। ज्यों-ज्यों मैं उसे देखती, मेरी आंखों में नशा बढ़ता चला जाता और फिर यूं लगा मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। उसने मुझे कनखियों से देखते हुए कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। उसने अचानक ये जुमला बोल दिया। कहने लगा, मैं राकेश हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? ये उसकी ऑफर थी, जिसे मैं किसी भी सूरत ठुकराना नहीं चाहती थी, क्योंकि जहाँ उसकी खूबसूरत आंखें थीं, वहीं वो खुद भी खूबसूरती का शाहकार था। बिला झिझक मैंने दोस्ती का हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने थाम लिया। उसके हाथों का लम्स भी मुझे हैरान कर देता। उसके हाथ यूं थे जैसे किसी नन्हे बच्चे के हों। मैंने कहा, मुझे रंगों से प्यार है। उसने कहा कि रंगों में तो मैं भी खो जाता हूँ। हम यूं ही बातें करते रहे। मेरे जाने का वक्त आ गया तो वो भी चल दिया। ये अजीब सी दोस्ती थी। अगले दिन मैं उससे मिलने के लिए बेचैन थी। मैं उससे मिलने गई तो वो पहले से ही जामन के दरख्त के पास मौजूद था। ऐसा लगता था जैसे बेसब्री से मेरा मुंतज़िर हो। मुझ पर नज़र पड़ते ही कहने लगा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। उस दिन भी हमने रंगों की बातें की। फिर अचानक ही वो बोला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ नबीला। मैंने कहा, हाँ बताओ ना। मैंने बेसब्री से कहा तो बोला, नबीला तुम मुझे जो समझती हो मैं वो नहीं हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा इंसान नहीं हो? अच्छा मजाक है। मैंने हंसकर कहा तो बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर क्या हो? कोई जिन हो? नहीं, मैं जिन भी नहीं हूँ। उसने अजीब बात कह डाली। अजीब इंसान है, कहता है इंसान नहीं हूँ, फिर कहता है जिन भी नहीं हूँ। मैं खुद से बोल रही थी, नबीला मेरी बात का यकीन करो, मेरा ताल्लुक जिन्नात से है ना इंसानों से। इस बार वो बहुत संजीदा था और सच्चाई उसकी आंखों से छलक रही थी। मुझे भी उसकी बात सीरियस लेना पड़ी। कहने लगा, नबीला ना हमारा ताल्लुक जिन्नात से है ना ही इंसान से है। बस समझ लो कि हम दरमियान की मखलूक हैं। हमारी कुछ ज़रूरियात जिन्नों जैसी हैं, कुछ इंसानों जैसी, मगर हम इन दोनों के बीच हैं।
हमें अलग थलग रहना पड़ता है। हमारा एक अलग कबीला है, एक अलग बस्ती है। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। मैं हैरानगी का मुजस्सिमा बनी उसकी बातें सुन रही थी। कहने लगा, नबीला, हमारी सरदार एक परीज़ाद थी। उसे एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया था जिसे रंगों से प्यार था, मगर सब जानते थे कि इन दोनों का मिलाप मुमकिन नहीं है। इन दोनों ने फिर भी शादी की, मगर शादी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो अजीब था। न ही इंसान था न परीज़ाद, मगर दिखता इंसानों जैसा था, सलाहियतें जिन्नात जैसी थीं। हमारे सरदार का जानशीन वही लड़का ठहरा था। उसकी नस्ल जब आगे बढ़ी तो फिर उसकी तरह के लोग थे, उन्हीं में से एक मैं हूँ। फिर उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली, क्योंकि जिन्नात के साथ हमारा गुजारा नहीं होता, और अपनी माँ का मुजस्सिमा बनाकर अपनी नगरी में नस्ब कर दिया। फिर वो सब के लिए देवी का मकाम रखने लगी। उसने अपने कबीले के बाशिंदों को हुक्म दिया कि वो प्यारे प्यारे रंग चुरा कर लाएं। देवी के हुक्म पर सबके सब कमर बस्ता हो गए। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। हर एक की ये ख्वाहिश होती कि वो अच्छे से अच्छा रंग लेकर आए ताकि उसे इनाम मिले। रंग चुराने में वो इतने हरीस होते गए कि आंखों के रंग भी चुराने लगे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि रंग चुराने की बजाय आंखों की बिल्ली दी जाने लगी। उनमें से किसी एक की नज़र तुम पर पड़ गई। फिर मुझे हुक्म हुआ कि मैं तुम्हारी आंखों के सभी रंग चुरा लूं। हमारी देवी को खुश करने के लिए तुम्हारी आंखों की बिल्ली चाहिए। मैं तुम्हारी आंखें चुराने आया हूँ, मगर ऐसा कर नहीं पा रहा। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अपनी कहानी सुनाकर वो चुप हो गया और मैं उसे अजीब निगाहों से देखती रही। कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी नगरी दिखाना चाहता हूँ। मुझे इतना मौका न मिला कि उसकी सुनाई हुई कहानी पर गौर करूं। कहने लगा, चलोगी मेरे साथ? उसने ये बात ऐसे कह डाली कि मैं उसकी कहानी पर ईमान ला चुकी हूँ। तुम्हारी दुनिया? कहाँ है तुम्हारी दुनिया? मैंने उसे झुठलाते हुए कहा। तुम्हें ये झूठ लग रहा है न नबीला? ये झूठ नहीं है। मैं तुम्हें रात को लेने आऊँगा, बस तुम तैयार रहना। एक बार तुम्हें अपनी दुनिया दिखानी है, फिर तुम खुद ही समझ जाओगी। इस बार वो मुझे गहरी सोचों में डाल गया। मेरे लिए इन सोचों से निकलना मुमकिन नहीं था। वो कहानी जो सुना गया था मुझे कोई अफसाना लग रही थी, पर कभी कभी सच भी लगती। बहरहाल जो भी था, मैं उठ खड़ी हुई और घर की तरफ चल दी। घर आकर भी इन्हीं ख्यालात में जकड़ी रही। क्या वो रात को आएगा? लगता तो नहीं। और फिर जो कुछ रात में होना था मैं उसका इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो जो भी था मुझे बस अच्छा लग रहा था। आज रात वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाने वाला था। उसकी कहानी तो मैं भुला चुकी थी, बस उसी का इंतज़ार कर रही थी। रात को मैं छत पर जाकर टहलने लगी और बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी। रात काफ़ी बीत गई, वो अभी तक नहीं आया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि खेतों में जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ आया हो, मगर उस वक्त बाहर निकलने से मुझे खौफ आता था। सो मैं छत पर टहलने लगी और फिर मैं कितनी ही देर उसका इंतज़ार करती रही। उसे ना आना था, वो ना आया। मैं मायूस होकर नीचे चली गई। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, नींद भी ना आ रही थी। रह रह कर उसकी याद आती। फिर न जाने कब मैं सो गई, मगर मुझे ऐसा लगा ज़रा सी आहट से मेरी आंखें खुल गई हूँ। सामने नज़र राकेश पर पड़ी तो वो मुस्कुरा रहा था। मुझे उस पर गुस्सा आया, मगर उसकी मासूम सी मुस्कुराहट के सामने सब कुछ हार देने को दिल कर रहा था। मुझे ऐसा लगा मैं किसी और दुनिया में हूँ। यहाँ तो हर तरफ दिन का उजाला फैला हुआ था, हर तरफ रंग ही रंग थे। राकेश चलता हुआ मेरे करीब आ गया। राकेश, कल यहाँ क्यों नहीं आए? कितना इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारा। मैंने उस पर गुस्सा झाड़ा तो बोला, अभी कल होने तो दो। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, यही कि अब तुम मेरे साथ मेरी नगरी में मौजूद हो। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मैं उसकी बात समझने से कासिर थी। उसने मेरा हाथ थामा और मुझे लेकर एक तरफ को चल दिया। वाकई उसकी दुनिया खुश रंग थी। कहीं पर झील, कहीं पर ऊंची नीची पहाड़ियाँ। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। खूबसूरत नज़ारे मेरे दिल को लुभा रहे थे। हर तरफ फूलों की भरमार थी
और खुशियाँ फैली हुई थीं। हर तरफ खुशबुएं इंसान को पागल किए देती। रंगों का हसीन इम्तिजाज बिखरा पड़ा था। ऐसे रंग मैंने कभी नहीं देखे थे। हम खूबसूरत नज़ारों से गुजरते हुए ऐसी जगह पर आ पहुंचे जहां एक खूबसूरत सी देवी का बुत था। राकेश देवी के आगे हाथ बांधकर प्रणाम करने लगा। नबीला, ये है हमारी देवी जिसने उस इंसान से मोहब्बत की थी। इसी की खातिर हम रंगों को चुराते हैं। नबीला, हमारी देवी तुम्हारी आंखों की भी बिल्ली चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। देवी की खुशी में तुम्हारी आंखों की बिल्ली दी जाए, यही हमारी ज़रूरत है। तुम्हारी आंखें मेरी पास अमानत हैं। जिस दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तुम्हारी बीनाई तुम्हें लौटा देंगे। आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी, बस एक दिन तुम्हें तुम्हारी बीनाई लौटाने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर कबल जो हसीन नज़ारे मेरी आंखों का मरकज़ बन रहे थे, वो सब मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं राकेश को पुकारने लगी, मगर वो तो गायब हो गया था। मैं कुछ तलाश करने के लिए हाथ पांव मारने लगी। अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं गिरने वाली ही थी कि मेरी आंख खुल गई। मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। मेरी आंखें खुली हुई थीं, मगर मैं कुछ भी देखने से कासिर थी। क्या ये सब ख्वाब था? मगर मेरी बीनाई तो चली गई। उसकी बातें मुझे याद आने लगीं। वाकई उसने मेरी बीनाई छीन ली थी, मुझे अंधा कर दिया था, मेरी आंखों के रंग चुरा कर ले गया था। आज मुझे उसकी बातें सच लग रही थीं। अचानक मेरी चीख निकल गई। चीख सुनते ही घर का हर फर्द मेरी तरफ भागा। जब मुझे होश आया था, सब मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मुझसे वजह पूछी जा रही थी, क्या हुआ था, चीख क्यों मारी थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं तो ठीक ठाक सोई थी, फिर ये सब कैसे हो गया। इस वाक़े को साल बीत गया है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। असल कहानी आज तुम्हें सुनाई है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। मैंने नबीला की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो ये कहती खामोश हो गई कि वो अपना वादा नहीं तोड़ सकता, वो ज़रूर आएगा। मैं उसे खामोशी से देखता रह गया। समझ नहीं आता कि नबीला की बातों पर यकीन करूं या ना करूं। आप ही बताइए, क्या आपको उसकी कहानी सच लगती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।